Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a face mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, students of class 8th, in our previous AVs, we just completed our first chapter named as Operating Systems. Now we are moving forward to our second chapter, that is working in Microsoft Excel. So in this chapter we will learn about inserting, renaming and deleting a worksheet, selecting and naming a cell range and applying a formula, differentiating between various type of cell references. So बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक के बारे में तो आपको पता होगा. सो यू कैन एंटर टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम इन अ स्प्रेडशीट. ये जो फिगर 2.1 में दिख रही है ये स्प्रेडशीट है एक तरह की. तो इसमें आप नेम, डेट वगैरह एंटर कर सकते हैं. सो स्प्रेडशीट कॉल्ड अ वर्कशीट इन एक्सेल. स्प्रेडशीट को एक वर्कशीट बोला जाता है. यहाँ पे देखो फिगर 2.1 में नीचे यहाँ पे शीट टैब दिया गया है, उसके सामने लिखा है शीट 1, 2 एंड 3. सो एक वर्कशीट को एक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. द डेटा यू एंटर इज स्टोर्ड एज अ वर्कबुक. जब आप इन तीनों शीट्स में डेटा स्टोर करते हो तो ये एक वर्कबुक बनती है. एज इन जैसे कि आपके बुक्स के पेजेस को मिला के एक प्रॉपर बुक बनती है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट्स. You will also learn about applying formula in Excel. So a worksheet contains cell organized in the form of rows and columns. So what is a worksheet? एक वर्कशीट में सेल्स होते हैं जो किसके साथ बनते हैं, रोज एंड कॉलम्स के साथ. अ वर्कशीट बिगन विद रो नंबर 1 एंड कॉलम A. So the first cell has the address A1. So look at the figure 2.1. This is your worksheet that is organized with columns and rows. Rows are the lines that are laying left to right, named as numbers. and column क्या होते हैं जो अल्फ़ाबेट से नेम किए जाते हैं, A B C D ऊपर से नीचे. ओके. सो अगर हमने इसमें बताना है कि जो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है तो ये A1 होगा, कॉलम एंड देन रो नंबर. It has a dark border around it, indicate that it is the active cell. जो एक्टिव सेल होगा उसके आसपास डार्क बॉर्डर होगा. सपोज हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो एक्टिव सेल कौन सा हो जाएगा हमारा, H6. ठीक है. सो दिस विल बी आर एक्टिव सेल और इसका बॉर्डर जो है वो दूसरों से डार्क हो जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड टू पेज नंबर 18. फर्स्टली वर्किंग विद शीट टैब. You can move from one worksheet to another by clicking on them on the sheet tab. In the sheet tab section, you can do the following. You can insert a new worksheet, you can rename a worksheet, you can delete a worksheet. So sheet tab कौन सी हमारी, in the previous figure यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया हुआ था ना sheet tab. So sheet 1, 2, 3 these are the sheet tabs. और इनसे हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द शीट टैब. सो फर्स्ट इज इंसर्टिंग अ न्यू वर्कशीट. तो हमें इंसर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फ्रॉम शीट टैब, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट. अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स. देन क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन. The insert dialog box appears. Select the worksheet option in the general tab and then click OK. So new worksheet get inserted before the selected sheet name. So first of all इन्होंने क्या कहा है कि right click on the worksheet before which you want to insert a new worksheet. Suppose these are your number of worksheet 1, 2 and 3. आपने अगर 3 से पहले एक वर्कशीट पे वर्कशीट को ऐड करना है देन यू हैव टू सिलेक्ट 3. अगर 2 से पहले करना है यू हैव टू सिलेक्ट 2. अगर 1 से पहले करना है देन यू हैव टू सिलेक्ट 1. सो हमें वो टैब सिलेक्ट करनी है जिससे पहले हम वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं. ओके.
जब हम वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, इन्होंने किस पे क्लिक किया, शीट 1 पे, तो उन्होंने शीट 1 पे क्या किया, राइट क्लिक। जब राइट क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारा एक पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, एक पॉपअप मेन्यू आया। ये जो आते हैं मेन्यूज़ जिसमें ऑप्शंस होती हैं, इनको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। नॉर्मली भी आप अगर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो आता है ना, जिस पे रिफ्रेश वगैरह लिखा हुआ होता है, वो पॉपअप मेन्यूज़ होते हैं। सो एक पॉपअप मेन्यू आया, उसमें से हमने क्या सिलेक्ट करना है, फॉलो स्टेप नंबर 2, इंसर्ट पे क्लिक करना है हमने। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ओके। तो देन उसमें से हमने जनरल टैब, यहाँ पे देखो जनरल टैब में से वर्कशीट को सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट किया एंड देन ओके, हमारी न्यू वर्कशीट जो हमने सिलेक्ट की थी, सपोज शीट 1, उससे पहले ऐड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ऑन आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19, वी विल लर्न हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट। पहले हमने देखा कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं, अब हम रीनेम कैसे करेंगे। द वर्ड रीनेम मीन्स टू रीप्लेस द ओल्ड नेम विद अ न्यू वन। रीनेम का मतलब क्या होता है कि पुराने नेम को बदल के कोई नया नाम रखना। सो इन एक्सेल अ वर्कशीट इज गिवन अ डिफॉल्ट नेम सच एज शीट 1, 2 एंड सो ऑन। सो हमने देखा भी है वहाँ पे शीट 1, 2 वगैरह दिए जाते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं। यू कैन रीनेम अ वर्कशीट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। आप अपने तरीके से उसको कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी का। तो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम द शीट टैब राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम। सो फर्स्टली हमें सेम जिस शीट पे हमने रीनेम करना है उस पर हमने राइट क्लिक करना है। क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। राइट क्लिक करोगे, पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, उसमें से आपने रीनेम चूज करना है एंड देन द नेम ऑफ वर्कशीट गेट्स सिलेक्टेड। जो वर्कशीट का नेम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। टाइप अ न्यू नेम फॉर द वर्कशीट, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, इन्होंने रीनेम पे क्लिक किया, देन जो टाइप था शीट 1 थी वो सिलेक्ट हो गया एक तरीके से कि आप अभी इसको चेंज कर सकते हो। उन्होंने किससे चेंज किया इसको, रोल नंबर नेम से इसको चेंज किया। शीट 1 का नेम चेंज होकर क्या कर दिया, रोल नंबर। शीट 2 और शीट 3 वैसे ही हैं, ओके देन इट्स डन। इतने से स्टेप्स में आपने अपनी शीट का नेम को चेंज कर दिया है। सो एवाज कूल टिप में देखो, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस द प्रेजेंट ऑन द शीट टैब। ये ऑप्शन दिख रही है शीट टैब पे। बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। Then you don't need to follow these all steps. Then you can simply click on this option and you can get a new worksheet. And then our next topic is deleting a worksheet. To delete a worksheet, follow these steps. From the sheet tab, right click on the worksheet, same as usual. sheet tab से right click करना है, pop-up menu जो कि same रहा है सभी में appear होगा। Then उसमें से हमने क्या choose करना है, delete. क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, द सिलेक्टेड वर्कशीट गेट्स डिलीटेड। सिंपली डिलीट पे क्लिक करना है और जो वर्कशीट अपनी सिलेक्ट की है वो डिलीट हो जाएगी। ओके देन पेज नंबर 20, इट हैज फिल अप्स, यू विल गेट दिस इन योर रिटन असाइनमेंट, देन डू इट ऑन योर बुक ओनली। ओके देन सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज। सो बच्चे इसमें बताया गया है कि हमारे जो सेल्स हैं उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। जो सिलेक्टेड एरिया होता है बेसिकली उसको रेंज बोला जाता है। अ सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड सेल रेंज और सिंपली रेंज। अ रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल एड्रेसेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड इट्स डायगोनली ऑपोजिट सेल। सो जैसे कि फिगर 2.5 में दिखाया गया है कि सेल क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसको सिलेक्ट किया जाता है और उसमें 2 और मोर सेल्स होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल। कि सपोज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया है तो ये किससे बना होता है, फर्स्ट सेल के एड्रेस से और इसके डायगोनली ऑपोजिट सेल से। फॉर एग्जाम्पल अ रेंज दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल A1 टू B4 कंसिस्ट ऑफ सेल A1 टू A4 एंड B1 टू B4। सपोज उन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से हमारे सेल सिलेक्ट होंगे, A1 टू A4
B1 to B4. So we can write it as A1 colon B4. That means this cell's address and this one's address. So ये हो गई हमारी एक रेंज, कि सेल की रेंज क्या है हमारी. To select the range of cells, follow these steps. Click on the first cell in the range, that is your A1. Suppose, drag the mouse pointer to the last cell. You can also hold down the shift key and press the arrow key to extend a selection. So simply by using mouse, you just have to put your pointer over here or select the A1 cell. Then you have to drag the pointer diagonally to where the cell you want. लास्ट सेल जो आप चाहते हो वहाँ तक आपने उसको ड्रैग करना है, वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो आपकी एक रेंज कहलाती है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इट विद द कीबोर्ड ऑल्सो. यू कैन जस्ट होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द एरो कीज फ्रॉम योर कीबोर्ड, और वो जहाँ जहाँ से आपका सेल जो है वो जाएगा वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज हाउ कैन यू नेम अ रेंज. आपने ये तो हो गया सिलेक्ट, यू कैन कॉल इट सिलेक्शन ऑल्सो. तो ये अगर अपनी एक रेंज को सिलेक्ट किया और आपने उसको नेम देना है तो आप कैसे दोगे. यू कैन डिफाइन अ नेम फॉर अ सेल रेंज. दिस इज हेल्पफुल इन अपडेटिंग एंड मैनेजिंग द रेंज वेन एवर यू विश टू. तो आपने सपोज एक स्पेसिफिक, आपकी पूरी वर्कशीट पे काम है लेकिन आपने एक स्पेसिफिक काम को एक रेंज दी हुई है, उसको नेम देना है ताकि आपको उसको अगर चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हो. सो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है ये, अपडेटिंग एंड मैनेजिंग द रेंज. सो हाउ कैन वी नेम अ रेंज. फर्स्ट इज सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल यू वांट टू नेम. फर्स्टली हमें उन्हें सिलेक्ट करना है जिसको हमने नेम देना है. सपोज इन्होंने यहाँ पे फिगर 2.6a में A1 to B4 तक सिलेक्ट किया हुआ है. देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेंज. जो रेंज है वहाँ पे हमने राइट क्लिक कर देना है. पॉपअप मेन्यूज अपीयर. ये पॉपअप मेन्यू हमारा जो अपीयर हो गया, इसमें से क्या चूज़ करना है हमने. क्लिक ऑन डिफाइन नेम ऑप्शन. यहाँ पे देखो डिफाइन नेम, उन्होंने इस पर क्लिक किया. देन एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हुआ. द न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर. टाइप द नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स. ये डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे हमने अपना नेम है जो टाइप करना है. देन वी जस्ट हैव टू ओके, क्लिक ऑन ओके एंड द सिलेक्टेड रेंज गेट्स अ नेम. जो रेंज दी थी हमने उसको एक नेम दे देंगे. सिंपली सिलेक्ट द एरिया यू वांट, उस पर राइट क्लिक करो, डिफाइन नेम, एंटर द नेम एंड देन ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन नेम अ रेंज. सो देयर इज अनदर वे टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स. अनदर वे भी है, कौन सा ये. Select the range of cells you want to name. Click on the name box that display the cell address. Type a name for the range of cells and press enter. Firstly, select the range. आपने range select की A1 to C4. And then click on the name box that display the cell address. ये आपके A कॉलम के ऊपर ही शो होता है. On page number 17, figure 2.1. ये देखो ए कॉलम के ऊपर एक नेम शो हो रहा है ना, A1. ये सेल का नेम है. जब इसको आप सिलेक्ट करोगे तो देन यू कैन रीनेम योर रेंज ओवर हेयर. सॉरी, नेम, सिंपली नेम योर रेंज ओवर हेयर एंड देन जस्ट प्रेस एंटर. नाउ वेन एवर यू सिलेक्ट द रेंज नेम फ्रॉम द नेम बॉक्स, ड्रॉप डाउन एरो और टाइप द रेंज नेम, द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ सेल विल गेट सिलेक्टेड. और जब भी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है, ये देखो एक सिंपल सा एरो है ना जिसका फेस नीचे को है, तो ये ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं इसको. तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो होगा और अगर आपने उस पर से क्लिक किया देन यू कैन सिलेक्ट योर नेम. उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है उसको शो कर देगा. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूलाज. नेक्स्ट AV we will read about these. Till then आपने ये वाले रीड करने हैं and you will get your homework. Okay बच्चे, take care of yourself. Bye.